Dear students, welcome to the second class of Newton's laws of motion. Today we are going to understand the very fundamental law of motion, which is the Newton's second law of motion. This is Manish Gulati bringing you this lesson on behalf of Happy Model Higher Secondary School at Udhampur. Look at this picture. This summarizes the Newton's second law. We can see that there are two boys, one with yellow hair and one with brown hair. They are trying to pull a stone. My yellow haired boy has a big stone to pull, so he requires a big force. While this brown haired boy, Brownie, has a small stone to pull and he is able to pull it with one hand easily, and he is facing difficulty with even two hands. This teaches us that if the mass is more, we require a bigger force. Simple terms. But let's go to the technical meaning of the second law. And to do this, we need to first understand a physical concept, a physical quantity called as momentum, represented by the symbol P, and it is a vector quantity. Momentum क्या होता है? See, momentum is a measure of the strength of motion possessed by a body. How strong is the motion? How big is the motion? Now, momentum is formed by multiplying the mass of the body with the velocity of the body. That's the mathematical expression for momentum. P is mass times velocity. दो बॉडीज हैं, मान लीजिए एक स्कूटर है और एक ट्रक है, दोनों 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहे हैं, तो दोनों का v सेम है, लेकिन मास किसका ज़्यादा है? ट्रक का. Therefore, the momentum of the truck would be more than the momentum of the scooter. तो जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा अगर वेलोसिटी सेम है तो. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर दो बॉडीज का मास सेम है, दो क्रिकेट बॉल्स, एक स्लोली चल रहा है दूसरा फास्ट चल रहा है, तो जो फास्ट चल रहा होगा, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, और जिसका मोमेंटम ज़्यादा होता है उससे हमको उतना ज़्यादा डर लगता है. एक मच्छर आपकी तरफ आ रहा है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आपको आके टक्कर मारता है, आप बोलते हो अब झाड़ देते हो उसको. बट एक ट्रेन आ रही है आपकी तरफ 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो भी खतरा है आपको, बिकॉज ट्रेन हैज़ अ ह्यूज मोमेंटम एज कंपेयर्ड टू द मस्किटो. So momentum is therefore once again the quantity of motion possessed by a body. It's not just velocity, it's the product of mass and velocity. So what will be the units of momentum? The units of mass is kilograms and of velocity is meter per second. So SI units will be kg meter per second, and its the dimensions kg mass का m1, velocity क्या होती है l1 t minus 1. dimensions, we have taught you dimensions earlier. Those of you who have not yet looked at them, please visit my channel and go to dimensions. There are 3 beautiful lessons that I have put up there. Very important topic, dimensions. Momentum is also has a direction, therefore it's a vector quantity, and vector quantities हैं तो directions का ख्याल रखना ही पड़ेगा. आओ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल लेते हैं.
और वेक्टर होने के कारण क्या है कि वी हैव टू फॉर्म separate components along the x-axis and separate components along the y-axis. एक प्रोजेक्टाइल मोशन में लेट अस अप्लाई द नॉलेज ऑफ मोमेंटम. प्रोजेक्टाइल में हमने आपके साथ पढ़ा है that a particle moves with the velocity u making an angle theta with the horizontal. This particle takes this blue path, this parabolic path and lands at A. u velocity से गया था तो हम जानते हैं सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर जब वो आता है तो यू ही वेलोसिटी से वापस स्ट्राइक बैक करता है एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ऑफ लैंडिंग. थीटा इज द सेम, यू इज द सेम. तो फर्क क्या पड़ा? इस u के दो कंपोनेंट्स हैं. वेक्टर्स में हमने सीखा है ना कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ढूंढना. सो इस u के दो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स हैं. थीटा के साथ वाली साइड होती है u cos थीटा एंड थीटा के परपेंडिकुलर इज u sin थीटा. सो आई हैव the x component of velocity and the y component of velocity. Therefore, I will also have an x component of momentum and a y component of initial momentum. The momentum along the x-axis would be given as m, the mass of the body, and u cos theta, and the y component of initial momentum would therefore be mass into y component of velocity, that's u sin theta. Now let us look at the highest point P. At this point P, the body has only one velocity, it's not going any further up. ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब दी y component of velocity ऊपर जाते जाते कम हो गया. किसने कम किया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो एट पॉइंट P द x component of velocity को तो किसी ने कुछ नहीं कहा. It remains the same because we are assuming that there is no friction, no drag, no air drag along the x-axis, no acceleration along the x. Only acceleration is along the y dash axis, and that is acceleration due to gravity. So we have at point P, px will be mvx and that will be m into u into cos theta. वही रहेगा. Whereas ऊपर जाना बंद कर दिया तो ऊपर वाली velocity खत्म हो गई. So the momentum along the y axis would become 0. Let's see what happens at point A at landing. दो कंपोनेंट वापस u cos थीटा, u sin थीटा. बट अब की बार u sin थीटा इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. हमने साइन कन्वेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, ध्यान से समझना. हमने ऊपर को प्लस लिया, आगे को प्लस लिया, पीछे को माइनस, नीचे को माइनस. तो जब भी कभी आप न्यूमेरिकल करें, फिजिक्स समझें तो साइन कन्वेंशन को ज़रूर रखें अपने ध्यान में. आप खुद डिसाइड कर लें आप किसको प्लस लेना चाहते हैं. अब देखो y component of velocity at O was ऊपर की तरफ, it was positive. Now during landing at point A, the y component of velocity is in the downward direction. Therefore, py will be u m into minus u sin theta. So minus mu sin theta. Right? So this is how we look at velocity, momentum, and how do you calculate momentum during projectile motion, right? So we are trying to basically understand what is momentum, because momentum is going to be used in understanding the Newton's second law of motion. The Newton's second law of motion, it states that, let's look at the definition. The rate of change of momentum of a body, that means rate of change means change of momentum with respect to time. समय के साथ मोमेंटम में बदलाव जो आता है, that is directly proportional to the applied force. तो जब भी कोई बॉडी पे फोर्स लगता है तो उस फोर्स की वजह से बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है. एंड किस डायरेक्शन में चेंज होता है? द सेकेंड पार्ट ऑफ द लॉ सेज that it takes place in the direction of the applied force, meaning जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हैं मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में चेंज होता है.
लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू विद एन एग्जाम्पल. अब इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बॉल है, एक कोई लाइट बॉल से वॉलीबॉल, टेबल टेनिस बॉल. तो आप क्या करते हैं, इस बॉल को ऐसे ऊपर की तरफ उछालते हैं. विजुलाइज कीजिए, एक बॉल को आपने ऊपर की तरफ फेंका और जब वो नीचे आया आपने अपने राइट हैंड से ठा मारा उसको, वॉलीबॉल को ठीक हिट किया. टेबल टेनिस के बॉल को आपने टेबल टेनिस के बैट से हिट किया आगे की तरफ. अब आप देखो फोर्स कहाँ लगा, आगे की तरफ. मोमेंटम कहाँ का बदलेगा, आगे की तरफ का. सो मोमेंटम बदलता तभी है जब फोर्स लगता है. फोर्स नहीं लगे तो मोमेंटम भी नहीं बदलता. पिछले एग्जाम्पल में मोमेंटम कौन सा बदला, अलोंग द वाई एक्सिस. फोर्स लगा था क्या वाई एक्सिस में, जी लगा था. किसने लगाया था, ग्रेविटी ने लगाया था. एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लगा, इसलिए एक्स एक्सिस का मोमेंटम नहीं बदला. तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में चेंज करता है. दैट इज सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. So if I write this mathematically, I will say force applied is directly proportional to dp by dt, change of momentum with respect to time. If I remove the sign of proportionality, I get the applied force is equal to k into dp by dt, where k is some constant of proportionality. Luckily, the value of k is 1 in all units. चाहे SI हो, CGS हो, ये k की वैल्यू हमने पाया एक्सपेरिमेंट से 1 होती है. तो इसका मतलब अप्लाइड फोर्स जो है इज इक्वल टू dp बाय dt. दिस इज द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. देयर इज अनदर फॉर्म जो आपने ज्यादा 9th में पढ़ी है. लेट मी टेक यू देयर एज वेल. सी, बेसिक फॉर्म तो यही है, बेसिक तो यही है. एफ अप्लाइड इज dp बाय dt. अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. बट मोमेंटम बच्चों होता है मास टाइम्स वेलोसिटी. लेट मी पुट m into v in the previous equation number a. So I will get F applied would be d by dt of mass into velocity. If the mass of the body remains constant, mass say ball का mass hit करने से पहले और hit करने के बाद is the same. If the mass remains constant, तो mass को तो बाहर निकाल लेंगे derivative के. I get dv by dt, which is what, the rate of change of velocity, the rate of change of speed. And rate of change of velocity is called acceleration. Therefore, we have another formula that the applied force, the net applied force is equal to mass times of acceleration. Mass acceleration. So, जो भी फोर्स लगता है बॉडी के ऊपर उससे बॉडी एक्सेलरेट करती है. ये फोर्स कैसा होना चाहिए, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है it should be an external force and it should be an unbalanced force. net force होना चाहिए. अगर balanced forces लगेंगी, equal and opposite forces लगेंगी, then net force would be 0, therefore acceleration would also be 0. So what do we learn from this equation? Cross multiply कर दें तो we realize acceleration is applied force upon mass. So the first learning is that if the applied force is more, mass is constant, दो bodies हैं, दोनों पे हमने अलग अलग फोर्स लगाया. जिस पे बड़ा फोर्स लगाएंगे मास सेम है, जिस पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उसमें एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एंड इफ F अप्लाइड इज कांस्टेंट, दो बॉडीज पे मैं सेम फोर्स लगाता हूँ, मास सेम नहीं है बॉडीज का, तो जिसका मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी. अगर एक फुटबॉल है, दो बॉल पड़े हैं ग्राउंड में, दोनों फुटबॉल दिख रहे हैं हमको. एक नॉर्मल फुटबॉल है, एक पूरा लोहे का बना हुआ है, दिखते में बाहर से पेंट वही है. मैं जाता हूँ और जाके ना
असली वाले फुटबॉल को हिट मारता हूँ ठा करके, उसका मास कम है, वो जोर से दूर एक्सेलरेट करता है, आपको भी जोश आता है, आप जाते हो दूसरे फुटबॉल को, लोहे वाला फुटबॉल, बारी वाला, ओ देखने में फुटबॉल लग रहा था, आपने उसको किक मार दी ठा करके, अब क्या होगा, आपका पाँव टूट जाएगा, है ना, हॉस्पिटल आपको जाना पड़ेगा, आपने जोर से किक मार दी एक लोहे के फुटबॉल को, उसका मास ज़्यादा था, इसलिए उसके अंदर एक्सेलरेशन कम होगी। इनवर्स है, जिसका मास ज़्यादा उसकी एक्सेलरेशन कम, जिसका मास कम उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा, बाय द सेम फोर्स। So I hope you're understanding. I'm sending you notes as well, but it's important to understand physics. Physics is a subject of understanding. The better you understand it, the better you would become at it. And then it's a subject of applying your knowledge to numericals, to situations, and solve the problems of physics. Let's look at a numerical, right? Please write the numerical. The numerical is a car of mass 500 kg is initially moving with a speed of 10 meter per second, and the brakes are applied to bring it to a stop in 5 seconds. How much force needs to be applied? तो न्यूमेरिकल को आप पढ़िए, समझिए कि ये कार है आपके पास 500 किलो की और वो इनिशियली क्या स्पीड पे चल रही है, 10 मीटर पर सेकेंड, फिर उसकी ब्रेक्स लगा दी और वो 5 सेकेंड के बाद रुक जाती है। रुकने का मतलब उसकी स्पीड 0 हो गई। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू बी अप्लाइड टू स्टॉप इट? ऑलराइट, लेट्स सी। तो हमने डायग्राम बनाया, कार है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, फिर फाइनली वो स्टॉप करती है तो वेलोसिटी एट d इज 0। टाइम कितना लगा ऐसा करने में? स्टार्टिंग टाइम 0, जब ब्रेक्स लगानी स्टार्ट की 5 सेकंड के बाद पूरी ब्रेक्स लग गई। सो वी नो फाइनल वेलोसिटी, वी नो इनिशियल वेलोसिटी, वी नो टाइम। सो लेट अस कैलकुलेट एक्सेलरेशन विच इज डेल्टा v बाय डेल्टा t। डेल्टा का मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, और चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, टाइम फाइनल माइनस इनिशियल। v फाइनल इज 0, v initial is 10, time final is 5, time initial is 0. I get minus 10 by 5. So acceleration is minus 2 meter per second square. माइनस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन वो एक्सेलरेशन जो बॉडी की वेलोसिटी को कम करती है। एनीवेज, ये सिर्फ बताता है कम करने वाली एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग एक्सेलरेशन। Now we are given the mass of the car is 500 kg, and we have just learned that force is equal to mass into acceleration. So 500 into minus 2, so force is minus 1000 Newton. Magnitude of force will be 1000 Newton. Minus only shows that अगर गाड़ी आगे जा रही है तो force पीछे की तरफ लग रहा है। So समझ आया सब लोग को? तो हमने पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, फिर न्यूटन का सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma यूज़ किया, एंड हमने अपना क्वेश्चन किया। प्लीज़ पॉज एंड नोट डाउन दिस। कॉपी पेन हमेशा अपने साथ रखें। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू पॉज इन द वीडियो एंड राइट थिंग्स डाउन योर सेल्फ रादर दैन वेटिंग फॉर द नोट्स। दैट इज़ अ सेकेंड हैंड स्टाइल। बाकी तो क्लास में भी ऐसे सुनते हैं बच्चे और लिखते हैं, तो ऐसा ही करना चाहिए। आपके पास अपॉर्चुनिटी है रिवाइंड करने की, फिर से सुनने की, पॉज करने की, लिखने की। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.25, 1.5, 2 कर सकते हैं। तो जो आता है आप जल्दी कर सकते हैं, नहीं आता है तो आप उसको नॉर्मल स्पीड पे पढ़ें, समझें। बिकॉज आई टीच एट अ पेस that even the weakest of the students is able to understand. तो अगर आपको स्पीड कम लगती है तो आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल पूरा आपके हाथ में है, राइट।
Now, one more thing that we should talk about is what is called the law of independence of axis applied to forces. Now, अभी तक तो हम 9th क्लास तक यही पढ़ते आए हैं, F इज इक्वल टू एम ए. ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं, बिल्कुल भी अच्छी बात, नॉट गुड. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सिस बोलता है दैट द एक्स एक्सिस, the y-axis and the z-axis of motion are independent of each other. So F is equal to ma is a very simplistic formula, is only for very simple students. For the good students, we should understand that x-axis के लिए separate acceleration, y के लिए separate acceleration, z के लिए separate acceleration. तो fx, it will be mass into acceleration along x-axis. दैट इज वो फोर्स जो x के अलॉन्ग लगता है, वो x के अलॉन्ग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, वो x के अलॉन्ग मोमेंटम को बदलता है. Fy will be mass into acceleration along y-axis or the rate of change of momentum along the y-axis, and similarly for z-axis also we can write. Thus, we have modified our one force equation F is equal to ma into three equations, which is separately for x-axis, separately for y-axis, and separately for z-axis. And these three equations will help us to solve our problems. अब बोलेंगे नहीं सर, 9th में तो F is equal to ma से काम चलता था. 9th was 9th only, very simplistic, one dimensional motion था. अभी हम यहाँ 2 डायमेंशन प्रोजेक्टाइल में देखा था ना, x भी बदलता था, y भी बदलता था. तो अगर हम एक्स वाई को सेपरेट नहीं करेंगे तो कभी भी आंसर्स तक, हम सही आंसर तक नहीं पहुंचेंगे. सो फिजिक्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट्स. ऑल्दो आई टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो, ये टॉपिक मतलब हमारे सिलेबस से भगा दिए गए हैं बिकॉज ऑफ कोरोना, बट आई एम स्टिल डूइंग दिस विद यू बिकॉज दीज आर फंडामेंटल. वी रियली कांट अफोर्ड नॉट टू डू देम. आवर बेसिक्स, आवर फाउंडेशन वुड बी वीकेंड इफ वी डोंट डू these टॉपिक्स. So I am still doing it and you also do it. Exam में नहीं learn करेंगे, that's okay, but concept building is extremely important. So I am always focusing at understanding and concept building. Now let's talk about what are the units of force. Units of force, we say force is equal to mass times of acceleration. Force के SI units होते हैं न्यूटन. तो यहाँ से हम बना सकते हैं 1 न्यूटन, F की जगह 1 न्यूटन, मास इज 1 kg, एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ से जो हमारी बुकिश डेफिनेशन बनती है वो बोलता है 1 न्यूटन इज दैट मच फोर्स, वो उतनी फोर्स होती है 1 न्यूटन, विच व्हेन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूसेस इन इट एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 meter per second square in the direction of the applied force. तो हेडिंग जरूर बनाएं, यूनिट्स ऑफ फोर्स ये लिखें, ये डायग्राम बनाएं. दिस इज द बेस्ट वे ऑफ स्टडिंग. अपना नोट्स खुद बनाना इज द बेस्ट वे ऑफ स्टडिंग. क्लास में सुनना, समझना. फिर भी मैं कुछ टाइम के लिए आपको प्रिंटेड नोट्स, स्टूडेंट्स नोट्स भेज रहा हूँ जो मैंने पहले बच्चों को लिखवाए थे जब वो क्लासरूम अटेंड करते हैं. उनके नोट्स में आपको PDF बना के भेज रहा हूँ. बट दिस इज जस्ट टू हेल्प यू लर्न हाउ टू मेक. इवेंचुअली यू शुड लर्न हाउ टू मेक योर नोट्स. ओके, तो ये डेफिनेशन समझ आया सबको. 1 न्यूटन इज दैट मच फोर्स विच व्हेन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूसेस इन इट एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब 1 किलो की बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अगर लगा दिया जाए तो बॉडी एक्सेलरेट करती है with 1 meter per second square. एक बेटर डेफिनेशन लिखने के लिए वो ठीक है, एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे आपको इस डेफिनेशन से, लेकिन समझ बनेगी किसी और जगह से. आइए हम बात करते हैं ग्रेविटी के टर्म्स में. ग्रेविटी अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो 1 न्यूटन को मैं mg के फॉर्म में बात करता हूं. अब g तो 10 है, m कितना रखूं कि ये आंसर 1 आए? तो बोला मास को 1/10 kg.
10 कैंसिल, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम मास ले लें कितना 1/10 kg विच इज अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम्स। अगर हम एक 100 ग्राम्स का वेट अपने हाथ में रखें और अपने हाथ को बाहर की तरफ एक्सटेंड करें तो हमको 100 ग्राम को उठाने में जो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल पुल फील हो रही होगी, द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट वी एक्सपीरियंस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 न्यूटन। अप्रॉक्सीमेटली क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज जी की वैल्यू 9.81 होती है, नॉट 10 बट 9.81 is close to 10 and makes life easy. Therefore I say it is approximately equal to 1 न्यूटन। तो आपको ये 100 ग्राम की कोई चीज़ उठाना अपने हाथ में, जितना आपको नीचे की तरफ एक फोर्स फील होगा वो 1 न्यूटन होगा। अगर आपने 1 किलो की बोतल उठा ली है, बिस्लेरी की एक बोतल उठा ली 1 किलो की 1 लीटर वाली बोतल, तो आपको जो फील होगा वो होगा 10 टाइम्स मोर, 10 न्यूटन। तो आपको फीलिंग आएगी कि 1 न्यूटन क्या होता है। 1 न्यूटन एक छोटा सा फोर्स होता है, इट्स नॉट अ वेरी बिग फोर्स, राइट। तो राइट नाउ let's come to our next topic, which is concurrent forces. What are concurrent forces? We say forces that act on a body simultaneously are called concurrent forces. That means एक टाइम पर जो forces लग रही होती हैं किसी बॉडी के ऊपर, they are called concurrent forces. एंड जब कई सारी फोर्सेस लगे तो वो इक्विलिब्रियम भी तो हो सकता है, बैलेंस भी तो कर सकती है, नेट फोर्स जीरो भी तो हो सकता है। सो वी से फोर्सेस आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। जैसे फैन आपका आपके छत पे हैंग कर रहा है, अब ग्रेविटी फैन को नीचे खींच रही है, लेकिन क्योंकि फैन ऊपर छत के साथ बंधा हुआ है तो छत फैन को ऊपर की तरफ होल्ड की हुई है, दैट मीन्स एक फोर्स लगा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब क्योंकि द फोर्स बाय ग्रेविटी इन द डाउन डायरेक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑन द फैन बाय द रूफ इन द अपवर्ड डायरेक्शन and these two forces are equal in magnitude, hence the net force on the fan along the y-axis is zero. We say these forces are in equilibrium. Okay. अगर नेट फोर्स किसी बॉडी पे नहीं लगे तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? A body at rest remains at rest and a body in uniform motion maintains its uniform motion. कब? If the net force is zero. न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर नेट फोर्स जीरो है, मास तो जीरो नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन मस्ट बी ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो। सो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सिस की बात करें तो विल से द नेट फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस इज जीरो, मीनिंग the acceleration along the x-axis is zero. If the net force along the y-axis is zero, then acceleration along y is zero, and similarly acceleration along the z-axis is also zero. When we say net force along the x-axis means sum of all forces acting along the x-axis. कुछ x की तरफ, कुछ x dash की तरफ, जितने भी forces लग रही हैं उन सब का total is called the net force along the x-axis. इसको ज़्यादा एग्जाम्पल के थ्रू समझने में हमको समझ आएगा। मान लीजिए हमारे पास एक क्रेट है, कोई 50 kg का बॉक्स है, उसको हमने रस्सी के साथ 2 रस्सियों से बांधा हुआ है। एक रस्सी एक दीवार पे लगती है, दूसरी रस्सी छत पे जाके बंधी हुई है और ये क्रेट हैंग कर रहा है। ये जो दीवार के साथ रस्सी है ब्लैक वाली, ये 45 डिग्री का एंगल बनाती है दीवार के साथ, और ये वाली रोप जो है जो रूफ के साथ अटैच्ड है वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है जब ये इक्विलिब्रियम में होता है, ऐसे लटका हुआ होता है।
और क्योंकि ये 50 kg का है तो एक और फोर्स एक्ट करेगी एंड दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg. And let me take g as 10. So 50 into 10, that is 500 Newton is this green force acting along the down direction. और ये लटका हुआ है ऐसा, it is hanging out there. अब ये जो धागे हैं, ये जो रस्सी है, इनमें कुछ खिंचाव होगा. Let us suppose ये जो दीवार वाली रस्सी है उसमें कुछ टेंशन है, खिंचाव को हम टेंशन बोलते हैं. The tension in this rope, the pull in this rope is T1 and the pull in this rope is T2. So what is the question is, what is the tension T1 and T2 in this crate? Now according to our concept, there is equilibrium along the x-axis and the y-axis. ना ये x की तरफ इधर उधर झोल रहा है, ना ये y में ऊपर नीचे आ रहा है. It is at rest. So there is equilibrium along the x-axis and there is equilibrium along the y-axis. This concept will help us to calculate the values of T1 and T2. Right? क्या करें? तो वेक्टर्स का इस्तेमाल होगा. What we are going to do is, let's look here. मैं जो टेंशन T1 है उसको दो पार्ट्स में तोड़ता हूँ. ये 45 डिग्री का एंगल है तो ये भी 45 होगा. सो आई हैव T1 विल बी के दो कंपोनेंट, 45 के साथ वाला इज कॉल्ड cos 45. सो ये वाला ब्लू इज T1 cos 45 एंड ऊपर वाला ब्लू इज T1 sin 45. ये एंगल 60 है तो फिर ये एंगल 60 होगा. दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये दो लाइंस y वाली पैरेलल है एक दूसरे के. अब मैं इस T2 के भी दो टुकड़े करता हूँ. 60 के साथ वाली साइड cos, सो दिस इज T2 cos 60 डिग्रीज एंड दिस विल बी T2 sin 60 डिग्रीज. एंड नीचे तो 500 न्यूटन है. तो हमने नेक्स्ट स्टेप में अपने डायग्राम को मॉडिफाई किया. हमने जो फोर्सेस हैं T1 एंड T2 इनके दो टुकड़े कर दिए, कंपोनेंट्स ढूंढे. ये वेक्टर्स में सिखाया है हमने आपको हाउ टू फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर. तो जिसने नहीं पढ़ा है प्लीज़ गो टू द प्लेलिस्ट फिजिक्स 11th, गो टू वेक्टर्स एंड प्लीज स्टडी वेक्टर्स. वेक्टर्स आर द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स. मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताया था वेक्टर्स में स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा होना ज़रूरी है. तो ये अब क्या करेंगे, बिकॉज देर इज इक्विलिब्रियम अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, दैट मीन्स एक ब्लू फोर्स लग रही है राइट की तरफ, एक रेड फोर्स लग रही है लेफ्ट की तरफ, और इक्विलिब्रियम है, एक्स में हिल जुल नहीं रहा है, डिल डोल नहीं कर रहा है. इसका मतलब T1 cos 45 must be equal to T2 sin 60. So T1 cos 45 must be equal to T2 sin 60 degrees. Cos 45 बच्चों 10th क्लास में पढ़ा है 1 by under root 2. Sin 60 is under root 3 by 2. Let me call this as equation number 1. Hold this here. Now let us look at equilibrium along the y-axis. Y-axis में हम देख सकते हैं नीचे की तरफ ग्रीन वाला फोर्स है 500 न्यूटन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ऊपर में दो फोर्सेस हैं T2 cos 60 एंड T1 sin 45. राइट. सो ये दोनों का सम मस्ट बी इक्वल टू 500. सो T1 sin 45 प्लस T2 cos 60 इज इक्वल टू 500 न्यूटन. सो वी से T1 sin 45 कितना होता है 1 by under root 2 plus T2 cos 60 is 1 by 2 is equal to 500. Very good. Now what is T1 by under root 2? Equation number 1 say T1 by under root 2 is T2 into under root 3 by 2. Let me substitute equation number 1 in 2. तो ये क्या बन जाएगा, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं. दो वेरिएबल्स हैं T1 T2, दो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैथ्स क्लास 10th. आई विल गेट T1 by under root 2 की जगह लिखूंगा मैं T2 under root 3 by 2 प्लस T2 into 1 by 2. T2 कॉमन ले लूँ तो ये आएगा मेरे पास, नीचे एलसीएम तो 2 ही है. 1 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 500. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ,
500 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस √3, √3 होता है 1.732, 1.732 plus 1 will be 2.732. If I divide 1000 by 2.732, I get T2 is equal to 366 Newton. Right? अब मुझे T2 मिल गया, T2 ही मिल गया. Let me put equation number 3 in equation number 1. So I will say T1 by √2 is equal to 366 into √3 by 2. यही है √3 by 2. T2 की जगह वैल्यू डाल दी हमने, √2 को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व किया. माई आंसर कम्स आउट टू बी T1 इज इक्वल टू 448 न्यूटन. राइट. सो मेरा T2 जो है वो आ रहा है 366 और T1 आ रहा है मेरा 448 न्यूटन. तो किसको ज़्यादा टेंशन हो रही है? T1 को टेंशन ज़्यादा है, T2 को कंपैरेटिवली टेंशन कम है. राइट. समझ आया बच्चा लोग? कंपोनेंट्स कैसे ढूंढे? और इक्विलिब्रियम है, ना लेफ्ट जा रहा है ना राइट, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे. देयरफॉर ऊपर की फोर्स, सारी ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू सारी नीचे की फोर्स, सारी लेफ्ट की फोर्स इज इक्वल टू सारी राइट की फोर्स. इस तरह से हम बैलेंस करते हैं और अपने T1 और T2 को कैलकुलेट करते हैं. प्लीज़ पॉज दिस वीडियो. अगर आपको समझ आया प्लीज़ ड्रॉ योर डायग्राम. कलर्स यूज़ करिए, जैसे कलरफुल मैं काम करता हूँ आप भी कलर्स रखें अपने पास और सुंदर सुंदर काम करें अपनी कॉपी में. ठीक है. नाउ अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ. अब की बार ये मास जो है वो 10 kg का है. एक छत पे बंधा है वो 30 डिग्री का एंगल है, दूसरी जो धागा है वो भी एक दूसरी छत के साथ बंधा है, वो 60 डिग्री का एंगल है. इसमें टेंशन T1 है, इसमें टेंशन T2 है. बताओ T1 और T2 कितना होगा? क्वेश्चन समझ आ गया? T1 और T2 के आप कंपोनेंट्स ढूंढेंगे. ये 60 है तो ये 60 होगा, ये 30 है तो ये 30 होगा. कंपोनेंट्स बनाए मैंने T1 के, T1 cos 60 एंड T2 cos 30. इधर आया T2 sin 30, T1 sin 60. इनको आप सॉल्व करेंगे. मैं दिखा रहा हूँ आपको आंसर्स कैसे सॉल्व करते हैं. इक्विलिब्रियम अलोंग x एक्सिस, इक्विलिब्रियम अलोंग y एक्सिस. T1 T2 आ रहा है मेरा 50 √3 और T आ रहा है, T1 आ रहा है 50 न्यूटन. प्लीज़ आप ये करेंगे. मैं आपको नोट्स में भेजूंगा इसका सोल्यूशन, बट फर्स्ट आई वुड लाइक यू टू डू इट. ओके. सो एक और शॉर्टकट रास्ता होता है, एंट्रेंस में काम आता है. इसको हम बोलते हैं लैमीज थ्योरम. लैमीज थ्योरम क्या बोलता है? दैट अगर 3 फोर्सेस हों A, B, C, 3 वेक्टर्स हों, 3 वेलोसिटीज हों, कहीं पे भी लगाया जा सकता है. फोर्सेस पे लगाते हैं. 3 फोर्सेस हैं, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर. और A के ऑपोजिट B और C के बीच का एंगल है अल्फा, B वेक्टर के ऑपोजिट एंगल है बीटा और C वेक्टर के ऑपोजिट एंगल है गामा. सो गामा इज एंगल बिटवीन A एंड P. देन ये बोलता है, और ये अगर इक्विलिब्रियम में हो, रेस्ट पे हो, देन A वेक्टर अपॉन A के ऑपोजिट एंगल साइन अल्फा विल बी इक्वल टू B अपॉन साइन बीटा विल बी इक्वल टू C अपॉन साइन गामा. तो A बाय साइन अल्फा will be equal to B upon sin beta will be equal to C upon sin gamma. आइए एक लैमीज थ्योरम से और आसान होता है, कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है. दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लैमीज थ्योरम. सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस डाउनवर्ड फोर्स F and this blue force A for the system to be in equilibrium if the red force is 200 Newton and ये उनके एंगल्स हैं. रेड फोर्स 30 डिग्री का एंगल बनाती है विद x डैश एक्सिस और A वेक्टर बनाता है 60 डिग्री का एंगल. तो पहला काम होता है हमारा पूरे एंगल ढूंढना. A और F के बीच में, A और B के बीच का एंगल हमको गिवन है वो 90 है. नहीं भी गिवन होता तब भी हम कर लेते हैं क्योंकि ये 30 है, ये 60 है. 60 + 30 90 होता है. और लीनियर पेयर एक्सियम से ये
pink वाला angle is total 180, so A and B are at right angles to each other, 90 degrees. ये 60 है तो 90 plus 60 ये बड़ा एंगल A और F के बीच का 150 हो जाएगा, और 90 plus 30 this angle, big angle will become 120 degrees. Step number 1, angles calculate करना, पता चला? Now I will write A upon sin 120 is equal to B upon sin 150 is equal to F upon sin 90. sin 90 तो 1 होता है. sin 150 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको ये सिखाया है एंगल्स की वैल्यूज़ कैसे ढूंढती हैं. जिसने नहीं अटेंड किया है तो प्लीज़ गो टू द प्ले लिस्ट एंड लर्न ट्रिग्नोमेट्री. इनफैक्ट इफ़ यू गो टू एक मैथ्स 11th का भी एक है, वहाँ सुफल नहीं बनाया है उसको, तो उसको भी आप देख सकते हैं. मैथ्स 11th के अंदर एक मिलेगा आपको ट्रिग्नोमेट्री का. तो ए अपॉन साइन ऑफ 90 डिग्रीज प्लस 30, 120 को लिख सकते हैं, और 150 को लिख सकते हैं 90 प्लस 60. वहाँ पे हमने सिखाया है साइन 90 प्लस 30 होता है कॉस 30, और साइन 90 प्लस 60 होता है कॉस 60. सो ए अपॉन कॉस 30 इज इक्वल टू 200 अपॉन कॉस 60 इज इक्वल टू एफ बाय 1 विच इज़ एफ. अब कंपेयर करते हैं. cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है √3/2, cos 60 होता है 1/2. अगर मैं ये पिंक वालों को कंपेयर करूं तो f कितना आएगा मेरा? ये 1/2 ऊपर जाएगा तो f विल बी 400 न्यूटन. और अगर मैं ये ब्लैक वाले दो इक्वेशंस को कंपेयर करूं, सो ये 2 ऊपर चल जाएगा. 2a/√3 इज़ 400. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सो आई विल गेट 400 √3/2. ये a विल बी 200 इंटू √3 न्यूटन. सो a मेरा है, a जो है मेरा वो है इतना 200 √3, वेयर एज b इज फोर्स f इज 400 न्यूटन. अगर ये ऐसी फोर्सेस हुई देन वी वुड हैव इक्विलिब्रियम एंड द सिस्टम वुड बी बैलेंस्ड, राइट? सो फ्रेंड्स, students, this is it as far as today is concerned. Please revise your work. As I told you, learn to make your notes, pause the video, draw the diagrams, be colorful, write in your own hands, but I'm sending you notes as well. Okay? होमवर्क भी आपके पास है एक, और एक लैमीज़ थ्योरम का भी एप्लीकेशन हमने किया. ये आप देख सकते हो लैमीज़ थ्योरम बहुत आसान कर देता है, जल्दी करता है. ये एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ठीक बात? सो कीप स्टडिंग एंड स्टे ब्लेस्ड. गॉड ब्लेस यू. See you again tomorrow. Bye bye. Thank you.